السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج جمعے کے روز جاپان، پاپوا نیوگی اور آسٹریلیا کے 6 روزہ دورے پر 3 اہم کثیر جہتی سربراہی اجلاسوں بشمول G7 کے اجلاس میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے۔ جاپان کے ہیروشیما کے لیے روانہ ہوتے ہوئے وزیراعظم نے ایک بیان میں کہا، میں جاپان کے وزیراعظم فومیو کیشیڈا کی دعوت پر جاپانی صدارت میں G7 سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے ہیروشیما جاپان روانہ ہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان جاپان چوٹی کانفرنس کے لیے ہندوستان کے حالیہ دورے کے بعد وزیراعظم کیشیڈا سے دوبارہ مل کر خوشی ہوگی۔ اس خبرنامے کو MS ایجوکیشن کی جانب سے اسپانسر کیا جا رہا ہے۔ Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Najib Anisa from MS Junior College. I am here to represent the food festival here arranged at the MS Junior College. We thank the MS management for arranging the food festival here at our college. We are delighted to share the deliciousness of the food made by the students. Being the student of commerce, we've learned about the business and the practical life. Please click the following link in description for more details. اتر پردیش کی خصوصی تفتیشی ٹیم SIT اب مرکزی تفتیشی بیورو CBI کی طرز پر کام کرے گی، جس میں 3 مہینوں میں پوچھ گچھ اور 1 سال میں غور و خوض مکمل کرنے کے ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ SIT کے ڈائریکٹر جنرل رینوکا مشرا نے کہا کہ گزشتہ 5 سالوں میں محکموں کی جانب سے ماضی کے مقابلے میں دوگنی رفتار سے کیسوں کی چھان بین کی گئی اور ان کو نمٹا دیا گیا، جبکہ 2007 سے 2016 کے درمیان 32 مہینوں میں 47 کیسوں کو نمٹایا گیا، جن میں سے 88 کو انجام دیا گیا۔ 2017 سے 2023 کے درمیان 25 مہینوں میں جو تقریباً دوگنے ہو گئے ہیں کیسز، وہ بھی مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ریاست مہاراشٹر کے ناسک میں ترمبکیشور مندر میں زبردستی داخل ہونے مسلمانوں کے ایک گروپ کی کوشش پر تنازع جاری ہے۔ مذہبی قائدین اور سیاسی قائدین کے درمیان لفظی جنگ چھڑ چکی ہے۔ مسلمانوں کے وکیل کے بیان پر جارحانہ جواب دیتے ہوئے مہنت انیکیت شاستری مہاراج نے کہا کہ ہندوؤں کو مسجدوں میں ہنومان چالیسا پڑھنے کی اجازت دی جانی چاہیے۔ TV9 بھارت نے انیکیت شاستری کے حوالے سے کہا کہ اگر ہمارا مطالبہ ناقابل قبول ہے تو پھر مسلمانوں کو مندروں میں اگربتی جلانے کا ڈرامہ بند کر دینا چاہیے۔ مسلمانوں کے وکیل عاصم نے کہا کہ بلا لحاظ ذات اور مذہب ہر ایک کو مندروں میں داخل ہونے سے روک دینا چاہیے۔ اسی دوران شیو سینا کے لیڈر سنجے راوت نے BJP پر تنقید کی اور کہا کہ مسلمان زمانہ دراز سے ترمبکیشور مندر میں پوجا کرتے آ رہے ہیں۔ بعض افراد ہندو اور مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہوئے ریاست میں امن و ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ریاست کرناٹک کے نئے وزیر اعلیٰ اور نائب وزیر اعلیٰ کے علاوہ 20 مئی کو مزید 18 وزیروں کے حلف لینے کی توقع ہے۔ ان میں سینئر پارٹی قائدین G پرمیشور، MB پاٹل اور دیگر شامل ہیں۔ کانگریس نے آج اعلان کیا کہ بزرگ پارٹی قائد سدھارمیا کرناٹک کے نئے چیف منسٹر ہوں گے، جبکہ DK شیو کمار کو واحد ڈپٹی چیف منسٹر بنانے کا اعلان کیا گیا۔ حلف برداری تقریب 20 مئی کی دوپہر بنگلورو میں منعقد کرنے کا منصوبہ ہے۔ چیف منسٹر راجستھان اشوک گہلوت اور ان کے سابق کابینی رفیق سچن پائلٹ کے حامیوں کے درمیان آج اس وقت ہاتھا پائی ہو گئی جب وہ اجمیر میں پارٹی کارکنوں کی رائے جاننے کے لیے ایک میٹنگ میں جا رہے تھے۔ یہ میٹنگ شہر کے ویشالی علاقے میں مقرر تھی۔ AICC کی راجستھان کے لیے شریک انچارج امرتا دھون اس میں شرکت کرنے والی تھی۔ کرشچن گنج پولیس اسٹیشن کے SHO کرن سنگھ کے مطابق دونوں قائدین کے حامیوں کے درمیان نشستوں کی ترتیب پر جھگڑا ہو گیا۔ سٹی کانگریس کے صدر وجے جین نے بتایا کہ اجمیر ڈیری کے صدر نشین رام چندر چودھری اور RTDC کے صدر نشین دھرمیندر راٹھور کے حامی بھی یہاں آئے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی، جس کے نتیجے میں ہاتھا پائی ہو گئی۔ وزیراعظم نریندر مودی 28 مئی کو پارلیمنٹ کی نو تعمیر شدہ عمارت کا افتتاح کریں گے۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے مودی سے ملاقات کی اور انہیں نئی عمارت کے افتتاح کے لیے مدعو کیا۔ لوک سبھا سیکریٹریٹ نے یہ بات بتائی۔ نئی عمارت میں آسانی کے ساتھ لوک سبھا چیمبر میں 888 اور راجیہ سبھا چیمبر میں 300 ارکان بیٹھ سکتے ہیں۔ دونوں ایوانوں کے مشترکہ سیشن کی صورت میں لوک سبھا چیمبر میں 1280 ارکان کی گنجائش ہے۔ وزیراعظم نے 10 دسمبر 2020 کو پارلیمنٹ کی نئی عمارت کے لیے سنگ بنیاد رکھا تھا۔ نئی عمارت معیاری تعمیر کے ساتھ ریکارڈ وقت میں مکمل کی گئی ہے۔ پارلیمنٹ کی موجودہ عمارت 1927 میں مکمل ہوئی تھی اور اب 96 سال قدیم ہے۔ جماعت اسلامی ہند نے مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شنڈے کو ایک مکتوب روانہ کیا اور گزشتہ ہفتے رونما ہوئے اکولا فرقہ وارانہ فسادات کے سلسلے میں بے قصور مسلمانوں کو یک طرفہ اذیت رسانی اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کو بند کر دینے کا مطالبہ کیا۔ جماعت اسلامی ہند کے صدر حافظ خان فلاحی نے چیف منسٹر سے ملاقات کی تاکہ 14 مئی کو اکولا میں کشیدگی کا سبب بننے والے حالات کے بارے میں
दरियाफ्त कर सकें, जिसके नतीजे में झड़पें हुई थी और एक शख्स की मौत हुई। बाज़ अफराद के मुताबिक सोशल मीडिया पर जारहाना पोस्ट की गई थी, जिसके बाद चंद मुकामी मुस्लिम नौजवानों ने पुलिस को इत्तला दी थी। बहरहाल जब वो पुलिस स्टेशन से रवाना हो रहे थे तो पुलिस हमले पर बाज़ गैर समाजी अनासिर ने हमला कर दिया। बाज़ उन्होंने खानगी और सरकारी गाड़ियों को तोड़फोड़ की। उन्होंने चंद अफराद के मकानात हत्ता के मस्जिद तुराबली को भी निशाना बनाया। टाउन में 2 दिन तक इम्तनाई अहकाम नाफिज कर दिए गए थे और वहाँ सख्त सिक्योरिटी हुनूस बरकरार है। फलाही ने निशानदेही की कि पुलिस की फौरी कार्रवाई के बावजूद कई बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को, जिनका तशद्दुद से कोई ताल्लुक़ नहीं, गैर ज़रूरी तौर पर हिरासत में ले लिया गया है। फलाही ने अपने मकतूब में मुतालबा किया कि मस्जिद की बेहुरमती के वाक़े की अलहदा FIR दर्ज करते हुए अलहदा तहक़ीक़ात की जाए। इसके पीछे कौन है उसे भी हिरासत में लिया जाए। उन्होंने शिंदे से कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। रियासत उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ में कदीम हनुमान मंदिर में मुसलमानों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है और हिंदू यात्रियों के लिए ड्रेस कोड लागू करने रहनुमा खतूत भी जारी कर दिए गए हैं। उछाला तालाब इलाके में मंदिर के बाहर लगाए गए पोस्टर्स में कहा गया है कि मुसलमानों का मंदिर में दाखिला ममनू है। इस मंदिर को गिलहरी हनुमान मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू भक्तों के लिए ड्रेस कोड में कहा गया है जीन्स, मुख्तसर और अरियां लिबास पहनकर मंदिर में दाखिला होना ममनू है। मंदिर के महंत कौशल नाथ ने बताया कि मजहबी मुकाम पर ऐसे लिबास पहनना तवज्जो में खलल डालने और बेअदबी के मुतरादिफ है। लोगों को शाइस्ता लिबास पहनकर मंदिर आना चाहिए। बाहर वो जो चाहे पहने। जहाँ तक मुसलमानों पर इम्तना का ताल्लुक़ है, अगर वो पूजा करना नहीं चाहते तो फिर मंदिर में इनके आने का क्या मतलब है। मुसलमानों को मुआशी बहरान का शिकार बनाने के मकसद से की जाने वाली एक हिंदुत्व साजिशी नज़रिया तश्कील देने के लिए लव जिहाद के तर्ज पर ठोक जिहाद की इस्तिलाह इस्तेमाल की जा रही है। बजरंग दल कारकुनों ने एक हिंदू दुकानदार राजू पर एतराज़ करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया, जिसने अपनी दुकान साबिक के नाम से एक मुस्लिम जूस बेचने वाले को किराए पर दी थी। दिल्ली के नजफगढ़ में जूस की दुकान के मालिक राजू ने अपनी दुकान राजू जूस और शेक्स को मोहम्मद जायद नामी शख्स को किराए पर दिया, जो इस दुकान को इसी बैनर पर चला रहा था। वाक़े के इस वीडियो में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है, इसमें हिंदुत्व मेंबर्स बता रहे हैं कि इनका ताल्लुक बजरंग दल से है। भगवा स्कार्फ पहने हुए दुकानदार से पूछताछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो हिंदू नाम से एक मुस्लिम चला रहा है। इस बात की निशानदेही के बाद उन्होंने दुकान मोहम्मद जायद चला रहे हैं। उन्होंने एतराज़ किया और राजू से इस्तफसार किया कि वो एक हिंदू नाम के बजाय एक मुसलमान नाम पर दुकान के बोर्ड को तब्दील करें। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान दुकान चला रहा है तो दुकान के नाम के बोर्ड पर हिंदू नाम क्यों है। कोल्हापुर में मदरसों के बच्चों के सफर पर शरपसंदों ने हंगामा बर्पा कर दिया। पुलिस बुलाकर वार करवाया गया कि बच्चों का अगवा करके कहीं ले जाया जा रहा है। पुलिस ने कोल्हापुर में एक ट्रक में मौजूद 63 मुस्लिम बच्चों को अपनी तहवील में ले लिया और चिल्ड्रन होम भेज दिया। इन तमाम बच्चों की उम्रें 8 से 15 साल के दरमियान है, जो एक मदरसे में पढ़ते हैं और ट्रक में सफ़र कर रहे थे। चंद शरपसंदों ने इतने मुस्लिम बच्चे एक साथ देखे तो इनसे पूछताछ करने लगे। जब बच्चे ठीक से जवाब नहीं दे सके तो उन्होंने पुलिस को बुला लिया। इत्तला के मुताबिक कोल्हापुर के रोयकर इलाके में एक ट्रक पर हिंदुत्ववादी कारकुनान की नज़र पड़ी, जिसमें कई बच्चे एक साथ बैठे थे, जिन्होंने अपने सरों पर टोपियां पहन रखी थी। इन कारकुनान के जहन में वसवसे आने लगे और उन्होंने गाड़ी को रोककर पूछताछ शुरू कर दी। बच्चों ने बताया कि इनका ताल्लुक बिहार से है, लेकिन इन लोगों के पास जो रेलवे टिकट मिले वो मगरबी बंगाल से पुणे के थे। इस पर इन हिंदुत्ववादियों ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने बच्चों से पूछताछ की, वो ठीक से जवाब नहीं दे सके, तब इन्हें चिल्ड्रन होम भेज दिया गया। कोल्हापुर के डिप्टी सुपरिटेंडेंट मंगेश चौहान ने बताया कि मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखने वाले 8 से 15 साल के लड़कों का एक गिरोह ट्रक में कहीं जा रहा था, जब हिंदुत्ववादी कारकुनान ने ट्रक रोका और पुलिस को बुलवाया। अफसर के मुताबिक इन बच्चों से इब्तिदाई पूछताछ में मालूम हुआ है कि वो आजरा इलाके में पढ़ाई के लिए जा रहे थे। तब हमने इनके मदरसे से राब्ता किया तो मुंतज़मीन ने बताया कि ये बच्चे छुट्टियों के दौरान अपने वतन गए थे और अब वापस आ रहे थे। उन्होंने रेलवे के जरिए मगरबी बंगाल से पुणे फिर कोल्हापुर का सफ़र किया था। मंगेश चौहान के मुताबिक पुलिस बच्चों की शिनाख्त और इनके वालिदैन की मालूमात हासिल करने के लिए चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन के जरिए इनके आधार कार्ड वगैरह मंगवा कर जाँच करने की कोशिश कर रही है। शामी सदर बशारुल असद अरब लीग की चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। 2011 में शाम की जंग शुरू होने के बाद तेल की दौलत से मालामाल मुमलिकत में ये इनका पहला दौरा है। आज से शुरू हो रहे अरब लीग चोटी कॉन्फ्रेंस में बशारुल असद की मौजूदगी 12 साल की मुअत्तली के बाद शाम की वापसी पर मुहर लगाती है और इससे कशीदगी के एक दहे बाद ताल्लुकात का एक नया दौर शुरू होता है। 22 रुकनी अरब लीग का चोटी इजलास सऊदी अरब के जिद्दा शहर में हो रहा है।
तेलंगाना काबीना ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट को हिमायत सागर और उस्मान सागर ज़खायर आब से मरबूत करने का फैसला किया है। हैदराबाद और अतराफ के ज़खायर आब के तहफ़्फ़ुज़ व हिमायत सागर और उस्मान सागर ज़खायर आब को आलूदगी से बचाने के इक़दामात का फैसला किया गया। रियासती काबीना का इजलास चीफ मिनिस्टर KCR की सदारत में मुनक़िद हुआ। नए सेक्रेटरीट में काबीना का पहला इजलास था। 4 घंटे जारी रहे इजलास में रियासत की ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया गया और कई अहम तरक्याती फैसले किए गए। इजलास के बाद वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने वज़रा जी कमलाकर, श्रीनिवास यादव, प्रशांत रेड्डी और मल्ला रेड्डी के हमरा मीडिया से बात करते हुए काबीनी फैसलों से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि 10वें यौम तासीस तेलंगाना के ज़िमन में 21 रोज़ा तकारीब रियासत गिर सतह पर अज़ीमुश्शान पैमाने पर मनाने का फैसला किया गया है। तमाम शोबेजात में रियासत की तरक्की मिसाली रही, लिहाजा रोज़ाना एक शोबे की तरक्की की तफसीलात अवाम में पेश की जाएगी। कर्नाटक में कांग्रेस की शानदार कामयाबी के बाद BRS के सरबराह और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तीसरी मियाद को यकीनी बनाने के लिए मजबूत हलीफ जमात की तलाश शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबी मुफाहिमत के मसले पर इनकार के बाद BRS क़यादत BJP से खुफिया मुफाहिमत के इम्कानात तलाश कर रही है ताकि किसी तरह रियासत में इख्तिदार बरकरार रहे। मौसूख ज़राए के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने माक़बल इंतखाबात मुफाहिमत से इनकार कर दिया, ताहम बाज़ सीनियर कायदीन ने मौलिक असम्बली की सूरत में माबाद इलेक्शन मुफाहिमत के इम्कानात को खुला रखा है। हाई कमान से खुरबत रखने वाले बाज़ कायदीन तक KCR ने यह पैगाम पहुंचाया कि तेलंगाना में BJP के कदमों को रोकने के लिए इंतखाबी मुफाहिमत की जा सकती है। ज़राए के मुताबिक KCR ने मुफाहिमत की सूरत में कांग्रेस को 30 से 40 नशिस्तों का पेशकश भी किया है, लेकिन कांग्रेस हाई कमान ने पार्टी के रियासती यूनिट की राय हासिल करने के बाद मुफाहिमत की पेशकश को नामंजूर कर दिया। KCR को यकीन है कि मौलिक असम्बली की सूरत में माबाद इलेक्शन कांग्रेस से मुफाहिमत हो सकती है। बताया जाता है कि रियासत की सूरत हाल के बारे में कर्नाटक के नतायज के बाद जो सर्वे रिपोर्ट्स मंजर आम पर आई है वो BRS के नाक़िस मुजाहरे की पेशकशी कर रही है। हुकूमत की जानिब से नागार्जुना सागर डैम की सलामती और इसको मुस्तहकम रखने पर खास तवज्जो दी जा रही है। इंजीनियर इन चीफ नागेंद्र राव ने बताया कि 75 करोड़ रुपए के सरफे से डैम को मजबूत व मुस्तहकम बनाने के काम किए गए हैं। बताया गया है कि इन कामों को एक वक्त मुकर्रर करते हुए तकमील की हिदायत दी गई थी और इम्कान है कि मानसून की आमद से कबल इन कामों को मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि इन कामों के मुकम्मल होने के बाद यह डैम बहुत मजबूत और मुस्तहकम रहेगा और आइंदा 30 साल तक के लिए किसी मरम्मत की ज़रूरत नहीं होगी। उन्होंने बताया कि चूँकि यह प्रोजेक्ट तेलंगाना में वाक़ है, इसलिए रियासती हुकूमत ने इसकी जिम्मेदारी संभाली और मुकम्मल मरम्मती काम अंजाम दिए गए हैं। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी ने 18 मई को मौसम गर्मा का तेलंगाना में गर्म तरीन दिन करार दिया और भद्राद्री कुत्तागुड़म में दर्ज हरारत 46 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाने की इत्तला के साथ शहरियों को मशवरा दिया कि वो बिला किसी शदीद ज़रूरत के घरों से निकलने से इज्तनाब करें। भद्राद्री कुत्तागुड़म में दर्ज हरारत 46.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि शहर हैदराबाद के बाद इलाकों में आज दर्ज हरारत 42 डिग्री से तजावीज़ कर गया, जिसके सबब शहर की मसरूफ़ तरीन सड़कों पर ट्रैफिक नहीं थी और शहरियों ने घर में रहने को तरजीह दी। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने कहा कि तेलंगाना मिसाली सरमायाकारी का मरकज़ है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि रियासत किसी भी किस्म की तिजारती यूनिट्स के क़याम के लिए दरकार तमाम वसाइल, तरक्की पसंद सनत दोस्त पॉलिसियों और मुस्तहकम इख्तियारात वाले माहौल दोस्त निज़ाम की हामिल है। KTR, जिन्होंने रियासत में सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए अपने दौरे अमेरिका के मौके पर अब तक कई कंपनियों को रियासत में सरमायाकारी के लिए कामयाबी के साथ राग़िब किया है, इसकी सिलसिले की कड़ी के तौर पर न्यूयॉर्क में सरमायाकारों के गोलमेज इजलास में शिरकत की। इसका एहतमाम मुश्तरका तौर पर हिंदुस्तानी कौंसलेट न्यूयॉर्क और US इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम की जानिब से किया गया था। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और BJP के कौमी सदर JP नड्डा की 30 मई से तेलंगाना में 1 माह तक चलने वाले महाजन संपर्क अभियान के दौरान 2 अवामी जलसों में शिरकत की तौक़े है। ज़राए के मुताबिक पार्टी ने शुमाली और जनूबी तेलंगाना में एक जलसा मुनक़िद करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक पार्टी की जानिब से मुख्तलिफ शोबों की अहम शख्सियत के साथ तबादला ख्याल के सेशन मुनक़िद किए जाएंगे। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने गर्मा के पेश नज़र सफाई के शोबे के मुलाजमीन के काम के औकात में तब्दीली का फैसला किया है। आज जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए कमिश्नर GHMC लोकेश कुमार ने कहा कि सफाई के वर्करों के काम के औकात सुबह 4 बजे तक 12 बजे दिन में तब्दील किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन औकात के दौरान बायोमेट्रिक हाजिरी भी ली जाएगी। तारीखी मक्का मस्जिद में बम धमाका वाक़े के 16 साल मुकम्मल होने के बावजूद भी आज तक महलूकीन को इंसाफ नहीं मिला और बम धमाके में मुलविस काती आज भी आज़ाद घूम रहे हैं। 18 मई 2007 को जुमे की नमाज में हुए ताकतवर बम धमाके में 9 मुसल्ली जाँ बाख और 60 से ज़ायद जख्मी हो गए थे। बाद इस वाक़े के खिलाफ एहतजाजियों पर पुलिस फायरिंग से
مسجد کے باہر 5 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ بم دھماکہ واقعے کے 16 سال مکمل ہونے پر آج مکہ مسجد میں اور اطراف کے علاقے میں سیکورٹی بندوبست کیا گیا تھا۔ مسجد کے باب الداخلے پر مصلیوں اور سیاحوں کی پولیس کی جانب سے تلاشی لی جا رہی تھی اور مشتبہ افراد پر سخت نظر رکھی گئی تھی۔ امکانی احتجاج کے پیش نظر اور احتیاطی اقدامات کے تحت ریپڈ ایکشن فورس کو بھی متعین کیا گیا تھا، تاہم حالات معمول کے مطابق اور پرامن رہے۔